Good morning, students. Today we are going to start with English Grammar, Chapter 17, and the name of the chapter is Uses of Modal Verbs. That is, we are going to learn about modal verbs today, and we will be learning about can, could, may, might, will, etc. We will be learning about the use of these verbs. Now, what do you mean by modal verbs? Children, modal verbs add meaning to the main verb in a sentence by expressing possibility, ability, permission, or obligation. Now, what do you mean by possibility? Possibility means chances. Next is ability. Ability means to be able to. Then is permission, that is whether we are taking permission or giving permission. Then is obligation. Now obligation means duty, that is kartavya. Okay, so now let's start the chapter. Here first we are going to start with can, could, may and might. That is, we will be learning about where to use can, could, may and might. All these are modal verbs. So first here it is written, we often use can to mean to be able to or know how to. कैन कब यूज़ होता है? जब हम टू बी एबल टू कहना चाहते हैं, जैसे कर पाना या कर सकते हैं, ऐसा हम जब कहना चाहते हैं, सो कैन वर्ड इज़ यूज्ड. एंड ऑल्सो इट मीन्स नो हाउ टू, दैट इज़ कैसे. ठीक है, कैसे हुआ, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कैन. दैट इज़ कैन इज़ यूज्ड टू नो हाउ टू. लेट्स सी द एग्जाम्पल. She can operate the computer. That is, she is able to operate the computer. ठीक है, उसे कंप्यूटर चलाना आता है. Next is, my uncle can speak 5 languages. That is, my uncle is able to speak 5 languages. Can here means to be able to. इन दोनों sentences में can का मतलब है to be able to. Okay, so here can is expressing what? Ability. Now next is, can you swim? Question पूछा गया है. Can you swim? No, I can't. That is cannot का short form, can't. Okay, so यहाँ पे आंसर है no, I can't. That is, यहाँ पर हम able नहीं हुए, हमको स्विमिंग नहीं आ रही है, so that is why it is written no, I can't. यहाँ पर भी हमको क्या पता चल रहा है? ability. Okay, now next modal verb which we are going to study is could. Now could is used for ability in the past. That means the things which we used to do it in the past, that is, we did it in the past. Okay, so here the first example is, I could swim when I was 7. That is, मैं swimming कर पाता था जब मैं 7 years का था. Next is, at 2 years my sister could read the alphabet. That is, उसकी sister जब 2 साल की थी तब से alphabet read करना उसने start कर दिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पास्ट. पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर कि 2 साल की थी तब पढ़ सकती थी अल्फ़ाबेट्स. सो कुड इज़ जनरली यूज टू डिपिक्ट और टू डिस्क्राइब द थिंग्स विच डिड इन द पास्ट. ओके, पास्ट टेंस के लिए ही यूज़ होता है कुड. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, कैन एंड मे आर यूज्ड फॉर परमिशन एंड मे इज़ रादर फॉर्मल. नाउ कैन एंड मे, बोथ दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर परमिशन. And in this, may, M-A-Y, is rather formal way of taking permission. First example is, you can park your car there. Now here someone is giving permission that you can park your car there. आप वहाँ पर कार पार्क कर सकते हैं. So here permission is given. Now next is, visitors may use the swimming pool between 7 a.m. and 7 p.m. यहाँ पर भी परमिशन दी जा रही है और फॉर्मल वे में, क्योंकि मे यूज़ किया गया है तो मे फॉर्मल वे होता है परमिशन देने का. विजिटर्स को बोला गया है, विजिटर्स यूज़ कर सकते हैं ये पूल एंड द टाइमिंग्स आर 7 AM एंड 7 PM के बीच में हम उनको यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो मे इज़ रादर अ फॉर्मल वे ऑफ गिविंग परमिशन और टेकिंग परमिशन. नेक्स्ट इज, कैन आई यूज़ योर अम्ब्रेला. नाउ हियर कैन इज़ यूज्ड. कैन आई यूज़ योर अम्ब्रेला, दैट इज़ समवन इज़ आस्किंग, मैं तुम्हारी अम्ब्रेला यूज़ कर सकता हूँ. ले रहे हैं परमिशन, वी आर आस्किंग फॉर परमिशन. नेक्स्ट इज़, मे आई गो होम अर्ली टुडे. दैट इज़ हेयर ऑल्सो वी आर टेकिंग परमिशन, बट इन अ फॉर्मल वे वी आर टेकिंग परमिशन, दैट मे आई गो होम अर्ली, मैं जल्दी जा सकता हूँ घर पर. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू सी इज़ someone who is talking on the phone and he is saying,
On the phone he is saying, hello, can I speak to Ramesh please? Now someone on the phone is asking for Ramesh. That is, he wants to talk to Ramesh. Okay, so that is why he is saying, can I speak to Ramesh please? That is, he is taking permission from the person that can he speak to Ramesh please? Okay. Now these were all verbs, modal verbs can and may, which were used for taking permission or giving permission. Here we have done this. In the starting it was written can and may are used for permission. That is, both permissions, giving and taking, can be done by using these verbs. In this, may word is rather formal way of taking permission or giving permission. Okay. Now the next is could I. Here we are going to learn about could I. Could I is a more polite form than can or may I. ठीक है, हमने can और may I words का देखा कैसे यूज़ होता है परमिशन देने के लिए और लेने के लिए. अब हम could I करने वाले हैं इसी टॉपिक के अंदर, परमिशन के अंदर ही. could I भी ले सकते हैं हम वर्ड. That is, this modal verb can also be used for taking permission, but it is a very polite form. Can और may से भी ज़्यादा polite होता है could I. So let's see the first example. Could I read your newspaper? Here we are taking permission from the other person that could I read your newspaper? And the person is saying, of course you can. उसने permission दे दी है, कहा yes you can. ठीक है. Next is could I use your phone? Permission ले रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? Certainly you can. जो सामने वाला था वो बोल रहा है कि हाँ तुम यूज़ कर सकते हो. Okay, so could I is a more polite form than can or may I. Okay, which can be used for taking permission. Now moving on to next. When we give permission, we use can or may, but not could. Yes children, हमने देखा कि हमको जब permission लेनी होती है तब हम could use कर सकते हैं. But when we give permission, we can use only the words can or may, but we don't use could. Okay, we can't use could here. So look at the above examples again, which we did just now. Here it was written, could I read your newspaper? And the person giving permission said, of course you can. उसने ऐसा नहीं कहा of course you could. जब सामने वाला परमिशन दे रहा है तो वो of course you could नहीं लिखेगा, of course you can बोलेगा. Okay. Next is could I use your phone? तो तब भी रिप्लाई ऐसा मिला था certainly you can. तब ऐसा नहीं कहा गया कि certainly you could. Okay, so here look at the above examples again. We cannot say of course you could or certainly you could. Okay, this way means could is not used in giving permission, but could can be used in taking permission from someone. Next is we use may, might and could to say that something is possible. That is, जब भी possibility होगी होने की तो हम ऐसे words use कर सकते हैं. That is may, might और could. ये कब use होंगे? जब possible होगा. Next is we can use them for the present or for future. कभी भी वो चीज़ें possible है. जब possibility है तो हम चाहे present tense में लिख रहे हों चाहे future में, तो दोनों के लिए ये words use किए जा सकते हैं. That is may, might और could. Let's see some example. Now children, the first example which you are seeing on the screen is I may go to Nagpur next week. Here may is used. Okay, तो वो बोल रहा है कि मैं शायद नागपुर जाऊँगा next week. He is not sure. Okay. Next is she might be at home now. That is might be at home. Again there is no surety कि वो हो सकती है घर पर. Next is there is the doorbell. It could be Robert. That is, doorbell is ringing and it could be Robert who has rang the doorbell. That is no surety again in this. Now might is a little less sure than may. So children, might is used when we are less sure. जब ज़्यादा श्योरिटी होगी तो may word use कर सकते हैं. जब कम है श्योरिटी, when we are not sure, we will use might word. Okay. Now could is less sure than may or might. और जब बिल्कुल कम चांसेस हैं तो हम could word यूज़ करेंगे. may और might की जगह पर हम could यूज़ करेंगे. So children, when we are less sure we will use the word could. Okay. Moving on to next. We often use can or could when we ask someone to do something. जब भी हम किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो we can often use the word can or could.
नाउ कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन। कुड जब यूज़ किया जाता है तो वो बहुत ही पोलाइट माना जाता है, कैन से भी ज़्यादा पोलाइट होता है कुड। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन इज़ कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज़। नाउ दिस इज़ मोर फॉर्मल देन कैन। कुड जो है बहुत ही पोलाइट वे में कंसिडर किया जाता है। सो कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज़, दिस इज़ वेरी पोलाइट वे। Then is could you give me a lift to the station, again in a very polite way. Could you give me a lift to the station, this way it could can be used. Okay, next is could and might refer to the past time in the following sentences. अभी जो हम sentences study करेंगे, examples देखेंगे, उसमें could और might दोनों past से relate करेंगे. Now let's see the first example. She said that I could or might sit down. That is both the words can be used here. Could भी use कर सकते हैं, might भी use कर सकते हैं. Next example is he told us that he might go to Nagpur next week. Now next week में वो नागपुर जा सकता है ऐसा उसने बताया था, that means it was in the past. So that is why here in both the sentences could and might are referring to the past time. Okay. Now children, let's start with new topic. That is will, would, shall or should. Now first here it is written will is used to talk about the future. Will हम तब use करते हैं जब हमें future के लिए कुछ बोलना हो. Now we can use shall instead of will with I and we for future actions. Now we can also use shall word instead of will. Will की जगह पर हम shall भी use कर सकते हैं I और we के साथ जब हमें कुछ फ्यूचर का एक्शन बताना हो, दैट इज़ वॉट एवर इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, एंड इफ़ वी वॉन्ट टू टेल दैट वी कैन यूज़ द वर्ड शेल इंस्टेड ऑफ विल. विल की जगह पर हम आई और वी के साथ शेल यूज़ कर सकते हैं. ऑल्दो इट इज़ मच मोर कॉमन टू यूज़ विल, दैट इज़ कॉमनली हम विल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. अशोक विल बी 12 नेक्स्ट सैटरडे. दैट इज़ अशोक जो है वो 12 ईयर्स का हो जाएगा नेक्स्ट सैटरडे को. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, फ्यूचर टेंस, कि आगे चलकर सैटरडे को, दैट इज़ आने वाले सैटरडे पर वो 12 ईयर्स का हो जाएगा. सो इट इज़ फ्यूचर टेंस. नाउ द नेक्स्ट इज़ वी विल नो आवर एग्जाम रिजल्ट्स इन अ वीक और वी शैल नो आवर एग्जाम रिजल्ट्स इन अ वीक. दैट इज़ वी विल बी एबल टू नो आवर एग्जाम रिजल्ट्स विद इन अ वीक. एक वीक के अंदर ही हमारे एग्जाम के रिजल्ट्स आ जाएंगी, अभी तक आई नहीं है. सो अगेन दिस इज़ फ्यूचर टेंस. ओके, वी आर यूजिंग द वर्ड विल और शेल, बोथ आर राइट. इफ़ वी आर यूजिंग विथ वी के साथ हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट वैसे बोला है शेल भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई थिंक इट विल रेन टुनाइट. नाउ देयर आर चांसेस, अभी तक बारिश हुई नहीं है पर मुझे लग रहा है कि ऐसा बारिश होगी, अभी तक हुई नहीं है. सो अगेन इट इज़ अ फ्यूचर टेंस. ओके, सो वी यूज़ द वर्ड विल or shall when we want to say something about future. Now children, let's understand where the word shall is used. Okay, shall is used mostly in the questions shall I and shall we. जब हम कोई question पूछ रहे हैं तो mostly shall I, shall we वाले questions में shall word use होता है. Okay, let's see. We use shall I use करते हैं हम जब हम convey करना चाहते हैं किसी को कि do you want me to. जब हम पूछ रहे हैं किसी से कि क्या आप चाहते हो कि मैं, क्या आगे बोला है टू ऑफ़र टू डू समथिंग फॉर समवन, दैट इज़ कि हम कुछ ऑफ़र कर रहे हैं. ठीक है, शैल आई करके हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं या फिर किसी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं शैल आई, और शैल आई से क्रिएट करेंगे यही क्वेश्चंस. सो चिल्ड्रन, जब हम किसी के लिए कोई स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं या हम किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो हम शैल आई वर्ड यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. शैल आई क्लोज द विंडो, क्या मैं विंडो बंद कर दूँ. ठीक है, ये परमिशन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए विंडो बंद कर दूँ. नेक्स्ट इज़ शैल आई गेट अ टिकट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए टिकट ले लूँ. ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ शैल आई. Now next is we can use shall I when we want to know someone's opinion or when we want advice. जब हम किसी का opinion जानना चाहते हैं या फिर जब हम किसी से advice ले रहे हैं तब भी हम ये word use कर सकते हैं shall I. Okay, now which bag shall I buy. हम पूछ रहे हैं कि कौन सा बैग खरीदूँ, यहाँ पर opinion ले रहे हैं या फिर advice ले रहे हैं. Okay, shall I buy this साड़ी,
क्या मैं ये साड़ी खरीदूँ, एडवाइस मांग रहे हैं, या फिर ओपिनियन, दोनों चीज़ें राइट हैं। नेक्स्ट इज शैल आई अप्लाई फॉर द जॉब, प्लीज़ एडवाइस दो मुझे कि क्या मैं अप्लाई करूँ इस जॉब के लिए। ओके, सो शैल आई इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टेकिंग समवन्स एडवाइस और ओपिनियन, बोथ. Next is we use shall we to ask for and make suggestions. Okay, now let's see some examples related to this. First one is what shall we do now, अभी हम क्या करें, ले रहे हैं suggestions, ठीक है. Next is what time shall we leave, अब फिर से पूछ रहे हैं कि कितने बजे हमको लीव करना चाहिए, कितने बजे निकलना चाहिए. नेक्स्ट इज़ शैल वी टेक अ टैक्सी, अब पूछ रहे हैं फिर से क्या हम टैक्सी ले लें. नेक्स्ट इज़ शैल वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, क्या हम डिनर के लिए आज बाहर जा सकते हैं. अगेन वी आर टेकिंग समवन्स सजेशंस. सो व्हेन वी आर टेकिंग समवन्स सजेशंस वी यूज़ द वर्ड शैल वी. ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर. ऑल दीज सेंटेंसेस were related to shall we, and here we are taking suggestions. Let's see now next one. We use will or would you to make request. जब हम किसी को request करते हैं तो will या would you use कर सकते हैं. would you is more polite than will you. जैसे हमने can और could में किया था, could ज़्यादा polite होता है can से, वैसे ही would you polite होगा will you से. Okay, now will or would both can be used here. First one is will or would. You shut the door please, will you shut the door please, this is also right. Would you shut the door please, this is also right. But would is more polite form than will you. Next one is will or would you pass the salt, क्या तुम salt pass कर सकते हो. At dinner time हम पूछ रहे हैं, ठीक है. So would you pass the salt is also right. Now next is we often say would you like when we offer food or drink. जब हम किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं food या drink तो हम पूछते हैं ना would you like to have some coffee like this. Let's see the example related to this. Okay, so first one is would you like a tea, क्या आप टी लेना पसंद करेंगे. would you like to have a cup of tea. Next is would you like some more rice, क्या आप और ज़्यादा राइस प्रेफर करेंगे. Okay, this we are asking for from someone when we are going to offer for food or drink. Next one, we use should to say what is correct or good thing to do. जब हम किसी को करेक्ट चीज़ बता रहे हैं या फिर कोई अच्छी चीज़ बोल रहे हैं कि ये अच्छी बात है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे should. Okay, you should respect your elders. Now this one we are saying a nice thing. हम एक पर्सन को समझा रहे हैं कि आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, सो वी आर यूजिंग द वर्ड शुड कि आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए. नेक्स्ट इज़ ही शुड ड्राइव मोर केयरफुली, उसे और केयरफुली चलाना चाहिए. अगेन वी आर एडवाइजिंग या फिर करेक्ट चीज़ करने को बोल रहे हैं तो वी विल यूज़ द वर्ड शुड हेयर. ओके, now children let's move to the new topic, that is the use of the words must, ought to and needn't. Here we use must to say that something is necessary or very important. जब कुछ बहुत ज़रूरी हो या फिर कुछ बहुत important बताना हो तो word must use होता है. Okay, first example is I must get up at 5 tomorrow. That is here the child in the picture is saying कि मुझे 5 बजे ज़रूरी है कल उठना. Okay. Next is you must see the doctor as early as possible. That is बहुत ज़रूरी है आपका कि जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर को दिखा लें. Okay, you must see the doctor as early as possible because it is very necessary for you to get the treatment as early as possible. Okay, now coming to have to, the word have to. We also use have to talk about necessity or obligation. जब हमको बहुत ज़रूरी काम है या फिर ज़रूरी है या फिर कोई हमारी ड्यूटी है, obligation means ड्यूटी है, तो भी have to word use होता है. The first example here is I have to be home by 10 o'clock. That is मुझे 10 o'clock तक कैसे भी घर पहुंचना है. Okay, this is obligation या फिर ज़रूरी है मेरा घर पहुंचना 10 o'clock तक. Now children, to talk about the past we use had to. must has no past tense. must का कोई past tense नहीं होता है और जब हम किसी past tense की बात करने वाले होते हैं तो we will use the word had to. Let's see, I had to get up at 5 yesterday. पहले उसने कहा था ना I have to get up, अब बोल रहा है I had to get up at 5 yesterday. कल मुझे 5 बजे उठना था. ठीक है, so it is past tense. Now again next is we also use must
when we suppose that something is certain, जब हम श्योर हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम यूज़ करते हैं वर्ड मस्ट. ओके, ही मस्ट बी ओवर 70. हमको लग रहा है, हम श्योर हैं कि वो 70 अबोव होगा. दैट इज़ आई एम सर्टेन दैट ही इज़ ओवर 70. जब हम सर्टेन होते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड तो हम वर्ड यूज़ करते हैं मस्ट. नेक्स्ट इज़ नोबडी इज़ आंसरिंग द फोन, दे मस्ट बी आउट. दैट इज़ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है तो वो लोग बाहर गए होंगे. सो हेयर ऑल्सो आई फील श्योर दैट दे आर आउट. मुझे श्योरिटी है यहाँ पर कि वो लोग बाहर गए हैं तभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, इन दिस सेंस द ऑपोजिट ऑफ मस्ट इज़ कैनॉट. जैसे अभी हमने मस्ट वाले सेंटेंसेस किए थे तो हम जब उसका ऑपोजिट सेंटेंस फ्रेम करेंगे देन वी विल बी यूजिंग द वर्ड कैनॉट. हम मस्ट नॉट नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ रिटन द ऑपोजिट ऑफ मस्ट इज़ नॉट, मस्ट नॉट. ये गलती सबकी होती है, डोंट डू दिस मिस्टेक. ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल. ही कांट बी ओवर 70. हमने लास्ट किया था मस्ट वाले में कि ही मस्ट बी ओवर 70, पर हम अभी उसका ऑपोजिट फ्रेम कर रहे हैं. देन वी विल बी राइटिंग ही कांट बी ओवर 70. नाउ हेयर आई एम सर्टेन दैट ही इज़ नॉट ओवर 70. जब हम श्योर हैं कि वो 70 अबव नहीं है देन वी विल बी यूजिंग द वर्ड कांट एज द ऑपोजिट ऑफ वर्ड मस्ट. ओके, नेक्स्ट रूल इज़ वी यूज़ आउट टू लाइक शुड. जैसे हम शुड यूज़ करते हैं वैसे ही हम आउट टू वर्ड यूज़ करते हैं टू से व्हाट इज़ द गुड थिंग और राइट थिंग टू डू. जैसे हम शुड में बताते थे ना कि क्या अच्छी चीज़ है या क्या करेक्शन है, उसी तरह से हम आउट टू भी यूज़ कर सकते हैं. सो हेयर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. हमने पहले किया था यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. उसी तरह से हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स बिकॉज इट इज़ अ गुड थिंग टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. यही राइट चीज़ है, इसीलिए हम आउट टू वर्ड यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ आई आउट टू फिनिश दिस वर्क बिफोर संजय अराइव्स. मतलब ये सही तरीका है, दैट इज़ ये अच्छी बात है कि अगर मैं फ़िनिश कर लूँ संजय के आने से पहले अपना काम. ओके, आई आउट टू फिनिश दिस वर्क बिफोर संजय अराइव्स. हेयर ऑल्सो वी आर सेइंग दैट I need to finish this work before Sanjay arrives because it will be a good thing to complete the work before someone arrives. Now children, moving on to the next rule, we use needn't or don't have to say something that is unnecessary. जब कुछ ज़रूरी नहीं है, कोई बात ज़रूरी नहीं है वो बोलना चाहते हैं तो हम needn't word यूज़ करेंगे. Okay, let's see. We needn't or don't have to wash the car. इट इज़ क्लीन. अब कोई कार साफ़ ही है तो उससे कोई ज़रूरत नहीं है वॉश करने की, यहाँ पर ये कहा जा रहा है. सो वी नीडंट या फिर डोंट हैव टू वॉश द कार बिकॉज इट इज़ क्लीन. कंपेयर द अबोव सेंटेंस विद द फॉलोइंग. नाउ विच द सेंटेंस विच वी रेड जस्ट नाउ, वी नीडंट और डोंट हैव टू वॉश द कार, इट इज़ क्लीन. इसे कंपेयर कीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ सेंटेंस, यू मस्टंट वॉश द कार. दैट इज़ यू मस्ट नॉट वॉश द कार, मस्टंट यूज़ किया हुआ है. द पेंट इज़ स्टिल वेट, क्योंकि हम मस्ट नॉट नहीं यूज़ कर सकते इसलिए शॉर्ट में मस्टंट बोला गया है. दैट इज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वॉश द कार बिकॉज इट इज़ पेंट इज़ स्टिल वेट. पेंट किया गया है और वो वेट है, अभी तक पेंट सूखा नहीं है, तो भी ज़रूरी नहीं है कार को वॉश करना बिकॉज पेंट ख़राब हो जाएगा इसीलिए. ओके, सो देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ वॉशिंग द कार. Again here it is told you to compare these sentences also. You needn't or don't have to come, that is it is unnecessary for you to come. कोई ज़रूरत नहीं है आने की वैसे. ओके, here ये बोला जा रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है आना आपका. नेक्स्ट इज़ यू मसंट कम, दैट इज़ कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, डोंट कम. इनडायरेक्टली कंपल्सरीली बोला जा रहा है कि मत आना. वी कैन यूज़ डोंट नीड टू इंस्टेड ऑफ नीडंट और डोंट हैव टू. डोंट नीड टू यूज़ होता है किसकी जगह पर, जब नीडंट या डोंट हैव टू यूज़ करना हो उसकी जगह पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ डोंट नीड टू. नाउ द फर्स्ट वन इज़ यू डोंट नीड टू वॉश द कार, दैट इज़ कोई ज़रूरत नहीं है वॉश करने की कार को. अगेन सेकेंड वन इज़ यू डोंट नीड टू कम. जैसे हमने ऊपर रीड किया था यू मसंट कम, यू डोंट हैव टू कम, वैसे ही यू डोंट नीड टू कम, कोई ज़रूरी नहीं है आपका आना. ओके, डोंट कम. Okay children, with this we complete our chapter 17 and I hope it is clear. We will be starting with new chapter in the next video. Thank you.